That's Okay, it. I have a trick question for you. Yeah, बिल्कुल. I will tell you a very boring segment जिसको प्रीमियम करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. T-shirts. Why do you think it is? Balki there's a company called Bewakoof and Soul Store literally did that. So when I say T-shirt would be a very use case, but in T-shirt also now you'll see there are many T-shirt brands which have actually scaled on premium on this. There's a company called Marsh Tea. Marsh Tea will sell T-shirts, but they are positioning this T-shirt as made from Supima cotton. And this T-shirt is far, मतलब नॉर्मल T-shirt धोगे और आपका जितने बार यूज करोगे उसको फेड आउट हो जाएगा. बट बिकॉज इट्स सुपीमा कॉटन, वन इट्स वेरी comfortable to feel like Egyptian cotton या कुछ उनको बोलते हैं. And then secondly it doesn't wear out that easily, right? And then they are able to charge and they are playing the anti brand कि उनका ना टी-शर्ट में कोई भी ब्रांडिंग नहीं रहेगा, मतलब जस्ट एक कलर का टी-शर्ट है, ठीक है, ये 6 कलर का टी-शर्ट है, ये हमारे पास, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो. So that is one example. The second example on t-shirts only is, for example, Soul Store or Bewakoof. Soul Store said कि we are all fascinated by Disney characters, and then we would like them on our t-shirts. Now to get the license of a special Disney character or a, let's say, a Marvel character on my t-shirt, I need to pay royalty to a Disney to allow to print on my t-shirt. So Soul Store started going and built exclusive rights for getting trademark rights to get existing brands or people who look up to as like characters onto those t-shirts, and then they were able to again price higher because I'm such a, not just a big t-shirt, I'm wearing a t-shirt to represent something, and if I am a fan of this character, I'm willing to pay a premium for that. So that would be, so t-shirts balki is actually a very high premium category because everyone will wear t-shirt regardless of this. Don't you think it is also very difficult to convince people कि जैसे कि अगर कोई टी शर्ट का ऐड आएगा, सोल स्टोर, आई एग्री, उनके पास एक यूएसपी है, वो एक ट्रेंडी है, जिनसी को पसंद आया वैसा उसका एक थीम है. बट एज अ जनरल, जैसे आपने अब एक और ब्रांड बताया, दे हैव वेरी प्रीमियम कॉटन एंड एवरीथिंग, दे डोंट डू ब्रांडिंग एज वेल. एज अ कंज्यूमर मेरे को जब एक दो बार वो ऐड आएगा ना, आई एम लाइक अनदर टी शर्ट, मूव, अनदर टी शर्ट, मूव. Don't you think it's difficult to convince, especially for clothing industry? So actually, remember, Marsh Tea played this game on quality. So what they first did was so while you say another t-shirt, move on, if the messaging was says ki we care about quality, and because we care about quality, we are priced 3 times more than what your regular t-shirt is, and this quality is significantly superior than what you're doing, and this is why you should use us. And it's like handbags ना, अगर आप बात करोगे तो आपको हर प्राइस में मिलने वाला है हैंडबैग्स, फ्रॉम अ बैगेट से लेकर लुई विटॉन से लेकर अमेज, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट द positioning of the quality and the perception of consumer faces for them to say, oh, this is why I want to invest in this brand and I stand for this. So it's obviously definitely a strong marketing game, but in all honesty, it is also a quality game. The reason you are willing to pay higher for this t-shirt, and I believe why I got sucked into buying a Marsh Tea would be the same thing, is because the quality was significantly superior. And once you, but देखिए, हम एक सबसे पहले कि कोई इंडियन कस्टमर आर नॉट प्राइस कॉन्शियस, दे आर वैल्यू कॉन्शियस. तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, ये नहीं कि हमें सबसे सस्ता सामान चाहिए, हमें चाहिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, ठीक है? एंड दैट्स डिफरेंट देन सेइंग कि आई वांट द लोएस्ट प्राइस. सो एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू कम्युनिकेट वैल्यू अबाउट आवर प्रोडक्ट, व्हिच इज व्हाई वी डिमांड द प्रीमियम एंड द बायर अग्रीज ऑन इट, इज व्हेन वी आर एबल टू हैव अ ट्रांजैक्शन. एंड एनी ब्रांड, इवन इफ आई, any form of fancy marketing that I do for you, and or anyone does, and then says कि they are able to acquire the first customer because they believe in the idea that we are saying of quality. And अगर मैंने वो टी-शर्ट पहना और मुझे लगा कि एक्चुअली में क्वालिटी फर्क है ही नहीं, तो मैंने रिपीट परचेज करने वाला नहीं करने वाला. And then anyways the brand has lost the customer. So the thing is कि we as brands make money because we retain customers. We retain customers because of product experience. It's a product which we are and we communicate that product experience over our messaging. अगर हमने जो communicate किया, हम जो deliver नहीं कर पाए, तो कोई भी फॉर्म मार्केटिंग से उसका फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज वो it's more expensive to acquire the customer. So I need to make money because by retaining them and is become a regular customer. Tell me like an entire category जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, like healthcare हो गया, या फिर आपने जैसे apparel का बात कर लिए, which category has like huge scope right now? So I feel the food and beverage category is very interesting and has huge scope because the entry barriers for opening up a food and beverage business is relatively lesser. And I want to sort of highlight there a few things here. कि today we do not think of advertising purely on Meta. जब हमने website setup कर रहे हैं, हमारा sale होने लग गया और website, right? That is possible for maybe a personal care brand or a apparel brand. When I talk about food and beverage, if I'm selling chips and my chip average order value of chips is 150-200 rupees, तो मैं जितने भी Meta में मैंने marketing किया है, for me to acquire a customer for 150 rupees chips, बहुत महंगा. So it's not sustainable for me. And because not sustainable for me, historically, food and beverage businesses were very hard to build digitally.
But now, because of Blinkit, quick commerce, right, that has come in, it is now becoming viable to create these businesses. Because ये क्या हो रहा है, जैसे Amazon ने आया, Amazon ने हमारा एक नीड सॉल्व किया कि यार हमें एक्सेस सिलेक्शन दे दिया एंड हमें विद इन 1-2 डेज हमें डिलीवरी मिलने लगी. बट क्विक कॉमर्स तो पूरा गेम चेंजर ही हो गया, बिकॉज हमें 5 मिनट 7 मिनट में हमारा सामान आ रहा है, हमें नए नए ब्रांड भी डिस्कवर करने में. सो नाउ फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स would be able to ride on the wave of quick commerce to be able to reach to their customers and service them more effectively. So I feel very strongly is, and food and beverage is one category where repeat purchases are very fast and decision is very very impulse led. So I don't think too much time to नया shift try करते हैं, right? या ये नया form of soy protein है, इसको try कर सकते हैं, right? Because I have to make that one investment decision, which because I make it on impulse, within 15 minutes it will be at my house, and then I can decide if it works well for me, should I reorder again and again for that, right? So because हमें वो यूज करना है जहाँ पे हम उसको ट्रेंड को राइड कर पाएंगे. इससे आपने ये बोला से मुझे एक बात याद आई, लाइक व्हेन फ्रीक्वेंटली आई बाय पनीर फ्रॉम ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, ठीक है, एक ब्रांड है आईडी बोल के. यस, आईडी फ्रेश. यस, आईडी फ्रेश. सो सिर्फ दैट इज ओनली ब्रांड जो नींबू से फाड़ता है पनीर. ओके, इंटरेस्टिंग. बाकी सब लोग सिट्रिक एसिड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट से फाड़ते हैं. करेक्ट. जस्ट फॉर दैट वन डिफरेंशिएटर आई ऑलवेज बाय आईडी वाला. वो नहीं होता है देन आई गो फॉर अमूल. See now, in this example that you shared with us, कि you were so particular that you could see the differentiation of ये नींबू है versus citric acid, and hence it is looking more organic to me and willing to pay the premium because it is more natural to me to I don't want to consume more historically chemicals. पनीर नींबू से ही फटा गया है, लेकिन अब कोई और हमें बना के दे रहे हैं, तो rather than doing chemicals they are doing the more hard cold press oil भी यही चीज है, कि as opposed to process हमने इसको cold press किया हुआ है. So ये सब में when we know, because हम जो अपने शरीर में डाल रहे हैं, we are willing to pay a premium because it will improve our lifespan, it will improve our like health, or we feel that, right? Which is why customers are willing to pay for the value that we are proposing, that we are creating. So if you can just find this small differentiator, yeah, you know, you can easily. And ये चीज ना, and the beauty of this is कि historically घर का घी बेलौना से बनता था, लेकिन उसमें एफर्ट लगता था और हम इसको करते थे. But over time हमने प्रोडक्ट खरीदने लगे. And if you really talk about the richer and richer people, they want to go back to the same Bellona ghee. Yes, yes. Right? And the same ghee guy जो E2 का घी दे रही है, as opposed to a New Jersey guy जो बाहर से foreign से है, because इसमें E2 प्रोटीन नहीं होता है. तो in all honesty, we are going back to our roots. And हमें नया आइडिया में भी अगर हम कोई चीज़ को अपने तरीके से स्मॉल बैच में प्रिपेयर करें, जो हमें पता था ये क्यों सही था, जो हमने इसको, बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स मास रीच करने के लिए इन्होंने हर चीज़ में सिस्टम प्रोसेस और एफिशिएंसी लगाने के लिए पाम ऑयल डालने लग गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स डालने लगे, सो दैट प्रिजर्वेटिव्स करके हम इसको लाइफ स्पैन बढ़ा सके और इसको सस्ते में बेच सके. बिकॉज हिस्टोरिकली जनरल ट्रेड ये सब ब्रांड ऐसे ही अपने आप को बढ़े हुए हैं, बिकॉज ये किराने की दुकान से बिकते थे. बट अब ये जब 15 मिनट में मिल रहे हैं एंड ये कंज्यूमर्स के पास पैसे हैं, तो यही सब ब्रांड को अगर हम रीविजुअलाइज करें कि पहले कैसे बनाए जा रहे थे, जिसमें ज़्यादा फायदा होता था. बिकॉज हमें द बिगेस्ट थिंग यार, हमें हेल्थ सही चाहिए. बिकॉज अगर हमारे पैसा है तो सबसे पहले हमारा सेहत सही होना चाहिए, तो उसमें फोकस किया जाए. सो यस, जैसे आप एक इनसाइट फाइंड करोगे तो उसी में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो एंड उसी को आप कम्युनिकेट कर सकते हो. एंड मार्केटिंग करोगे मेटाफर्म अवेयरनेस, लेकिन नाउ आपका सेल्स चैनल ऑन ब्लिंकिट इज देयर टू स्केल यू एवरीवेयर. आप हाइपर लोकल ग्रोथ के बारे में बहुत बात करते हो, क्या होता है हाइपर लोकल ग्रोथ? सो एक सेट ऑफ कस्टमर है यार, कि जब आप बिजनेस चलाते हो, मुझे पूरा इंडिया को सर्विस करना है और मैंने अपने थोड़ा प्रोडक्ट्स में ऑनलाइन बेचे, फिर मेरे को कॉमर्स में बेचे, मेनी अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस यार, कि मुझे ना फॉर एग्जांपल आई एम अ स्पेशल डिजाइनर एंड मुझे एक लोकेलिटी या एक सिटी में अपना दुकान खोलना है, चाहे वो छोटा भी हो, और मुझे उसके आसपास में ही मेरे कस्टमर्स कौन है उन्हीं को सर्विस करना है, या मैं एक तो सर्विस प्रोवाइड करती हूँ. इवन लाइक आई एम अ डेंटिस्ट, राइट, एंड आई वांट टू अल्टीमेटली मेरा जो कस्टमर बेस है वो तो पूरा इंडिया होने वाला नहीं है, बिकॉज मैं सर्विस करने वाली हूँ. अगर मैं सर्विस कर रही हूँ तो मेरा जो कस्टमर बेस है, जहाँ पे मेरी दुकान है उसी के आसपास वाले दुकान में जो लोग रहते हैं वो ही मेरे कस्टमर बन सकते हैं. नाउ हिस्टोरिकली अगर मुझे नए कस्टमर चाहिए तो लोग कैसे मुझे मिलते थे, कि वर्ड ऑफ माउथ से. कोई मेरे पास आया, उसको अच्छा लगा एंड थोड़ा बहुत भी ऐड किया, लेकिन द प्रॉब्लम है हमने ऐड किया, लेकिन किसको ऐड किया, वो ऐड देख के कितने लोग आए, वो एक्चुअली में सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और मुझे ऐड में और पैसे खर्चा करने हैं वो तो मुझे पता ही नहीं चलता, राइट. और अगर मुझे समझो, बिकॉज ऐड डिजिटल में हम बहुत मेजर कर पाते हैं, बट ये नहीं कि यार होर्डिंग से हमें फायदा नहीं हो रहा है. हम आप गाड़ी में जाओगे, आप अगर सेम होर्डिंग को 15 बार देखोगे आपको नाम याद आ जाता है ब्रांड का, राइट. अगर आप टीवी में, अगर आईपीएल में ऐड देखोगे 50 बार तो आपको याद आता है कि ये ब्रांड क्या है. वॉशिंग पाउडर निरमा हमें क्यों याद है, बिकॉज उसको हमने बचपन से 100 बार सुना है, ठीक है. अगर मैं बोलूँगा कल आपको डिश में कौन सा ऐड देखा, आपको प्रॉब्लम याद भी नहीं रहेगा, राइट. सो अवेयरनेस इज बिल्ड बाय फ्रीक्वेंसी, कि सेम चीज को अगर बार बार दिखाया जाएगा तब हम उसको अवेयर कर पाते हैं. So now for a hyper local marketing business, so any business which is having a physical location,
इज केयरिंग अबाउट दिस कैचमेंट कि मेरे आसपास कौन बायर है. तो अगर हमें पता जाता है यार कि अगर मेरी दुकान यहाँ है और मुझे पता है कि इसके आसपास में बायर कौन है, तो उन्हीं को मुझे अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना है. और फिर मुझे बोलना है कि उन सब में से कितने लोग मेरे फाइनली दुकान में आ रहे हैं. सो देन आई कैन एक्चुअली डू माई मार्केटिंग मोर इफेक्टिवली. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको हमारे कस्टमर के बारे में जानना है, तो जो कस्टमर हमारा है, लाइक आई सेड, वो बाकी का भी कस्टमर हो सकता है. ये डेंटिस्ट वाला एग्जांपल लेके बताइए. चलो, एक डेंटिस्ट का स्टोर है सॉल्ट लेक कैलकाटा में, ठीक है. उसको नए नए कस्टमर चाहिए. पहले उसका जो स्टोर का लोकेशन है, बेसिकली वो बोलेगा कि मे बी कोई भी डेंटिस्ट मेरे पास आएगा, मतलब कोई भी कस्टमर मेरे पास आएगा एज अ डेंटिस्ट, वो मे बी 15 से 20 मिनट दूरी से ही आने वाला है. उससे ज़्यादा दूर में कोई चला के नहीं आएगा, बिकॉज कोई और डेंटिस्ट है जो उनको सर्च कर सकता है. वी आर वांटिंग टू फाइंड पीपल इन द एरियाज वी आर नेबरहुड वी आर लिविंग इन. सो आई वांट टू नो फॉर माई लोकेशन कि मेरे कस्टमर कहाँ से आने वाले हैं. तो पहले मेरे को जानना है मेरा कस्टमर कौन है. तो जो डेंटिस्ट जैसे जो डेंटिस्ट एज अ सर्विस ऑफर करना चाहता है, वो सेम बंदा क्या करेगा, परफोरा से टूथपेस्ट ऑर्डर कर रहा होगा, वो जाके किराने की दुकान से सामान ऑर्डर कर रहा होगा, या वो नेचर्स बास्केट या जेप्टो या ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर कर रहे हैं. अब जब भी वो दूसरे सामान ऑर्डर कर रहे हैं, हम वो अपने आप को अपना शिपिंग एड्रेस दे रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं. तो शिपिंग एड्रेस से ना हम, बिकॉज हम बाकी ब्रांड से कनेक्टेड हैं, हमें पता चलता है कि आपका जो स्टोर है उसके आसपास कितने बायर रहते हैं और कौन कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हैं, कौन कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, कितनी मात्रा में किस बिल्डिंग में कितने बायर रहते हैं. तो पहले हम आपको बताएंगे आपके पास ना, अगर इस 2 किलोमीटर के अंदर में हमने 1000 कस्टमर को पोटेंशियली आइडेंटिफाई कर लिए. फिर यहाँ पे पॉपुलेशन होगी 10,000, लेकिन हमें ऐड दिखाना है ओनली 1000 को, बिकॉज ये हजारों के पास ये आपका परचेजिंग से सिमिलर कस्टमर बन सकते हैं, बिकॉज डेंटिस्ट को भी अपना सिमिलर कस्टमर प्रोफाइल चाहिए. फिर हम बोलेंगे बिकॉज ये बिल्डिंग में रहते हैं, वो इस रोड को फॉलो करने वाले हैं, और ये रहा डेटा जिनको आप, इन्हीं को आप ऑनलाइन ऐड दिखाओ. तो सबको पिन कोड वाइज टारगेट करने की जरूरत नहीं है, उस पिन कोड के अंदर में जो मेरे एक्चुअल बायर है उन्हीं को ऐड दिखाने. फिर वो डेंटिस्ट वाली कंपनी ऐड चलाएगी उनके ऊपर में. लेकिन ऐड जब चलाएगी, वो ये नहीं बोलेगी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद लो, बिकॉज ये तो सर्विस है. वो बोलेगी जो ऐड में ना, ये अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप में मुझे आप मैसेज कर लो, या आप मुझे अपना लीड फॉर्म भर दो. सो एनी ऑफ द फिजिकल लोकेशंस अल्टीमेटली वांट अ वे टू ट्रैक कि मैंने जो ऐड किया उससे मुझे इंक्वायरी कितनी मिली, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हमें कुछ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट तो करना चाहिए, तभी हम बताएंगे हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए, कम करना चाहिए. तो व्हेन द डेंटिस्ट कंपनी विल फर्स्ट टारगेट द राइट कस्टमर एज अपोज टू टारगेटिंग एवरीवन, then it will have a measurement mechanism to say how many inquiries in WhatsApp converted, or not converted, received based on the ad we ran. And then of all the inquiries which came on WhatsApp, how many of them actually visited my store. So when they visited my store as a dentist, I will track from their phone number कि कितने लोग आए. Then I can ultimately come back to calculation to say what is my cost to acquire a customer. मैंने पैसे कितना खर्चा किया, मेरे पास इंक्वायरी कितनी है, एंड फाइनली कस्टमर कितना आया. एंड देन आई कैन से, अब मैंने मार्केटिंग अगर मैंने और इंप्रूव किया कि डेंटिस्ट में ना ये 4 बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं कस्टमर के, तो मैंने वैसा मैसेज किया और मेरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल मैंने ऐड चलाया, फिर देखा मेरा इंक्वायरी का कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ. एंड देन ये एक तो साइकिल चलता जाता है. एंड लाइक दिस हाइपर लोकल मार्केटिंग कैन बी अचीव्ड. नेक्स्ट स्टेप इज, इफ यू डिड वेरी वेल एंड यू वांट टू ओपन न्यू ब्रांचेस एट डेंटिस्ट, वेयर टू ओपन, which other markets or locations of the clinic will make sense, which will have highest number of buyers. आपके पास सारा डेटा है, तो आप उस हिसाब से एग्जैक्टली बता सकते हो कि इस एरिया में बेस्ट चलेगा. बिकॉज सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि देखो, एज ब्रांड्स वी विल ऑफर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट जो हमारा कस्टमर है वो तो बदलने वाला नहीं है, वो उस जगह में रह रहा है, वो वही सामान, मतलब उसके ये प्रॉब्लम इन स्टेटमेंट्स है, हम अपने आप को उनकी लाइफ में जोड़ पा रहे हैं. तो हमें समझना है, जब बिकॉज वो नहीं चेंज करने वाले हैं, और अगर हम समझ पाए वो कौन है, कहाँ रहते हैं, तो हमको अब सब चीज उनके अराउंड करनी है. एंड डिसीजंस बिकम मच मोर साइंटिफिक एंड स्केलेबल. छोटे शहरों में, बड़े शहरों में कंज्यूमर बिहेवियर में डिफरेंस है. क्या होता है कि बड़े शहर का कंज्यूमर में भी तो 50 टाइप के रकम में कस्टमर होते हैं, छोटे शहर में भी 50 टाइप के कस्टमर होते हैं. सो एक्चुअली इट इज नॉट बड़े शहर वर्सेस छोटे शहर. व्हाट वी विल नोटिस इज कि पॉकेट्स ऑफ छोटे शहर ऑल्सो बिहेव द सेम एज बड़े शहर. फॉर एग्जाम्पल रांची जैसा अगर आप टाउन में लोगे, उसमें डिफरेंट पिन कोड्स में ना डिफरेंट बाइंग कैपेसिटी होती है, और डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं कस्टमर के. And some neighborhood in Ranchi will actually replicate a neighborhood in Gurgaon, which is let's say a tier 1 city now, correct? Because why? वहाँ पे income भी similar है. आजकल, in all honesty, we are watching the same YouTube, we are watching the same Instagram, we are watching the same news channel. So exposure wise, most consumers in India are now becoming more and more similar, yet unique, because we are also watching unique content which we care about, right? As opposed to differentiated. So it is a bada share customer or chota share customer. It is actually which is my customer, and even if they are located in a small town, and if there are enough of them in a small town, I should be there, or I should service them. And the beauty of the internet or all of this data is to then effectively reach them more efficiently and service them better.
अच्छा आप मेरे को बताओ, इज देयर एनी स्टेट जो सबसे ज्यादा खर्चा करता है ऑनलाइन? So what we have noticed, yeah, so this is again because purely directed to affluence, and because we do this all this analysis, one of those other things I want to highlight to you is कि हर अपना business सोचते हैं अपने आप को marketing कैसे करें, right? लोग उनके बारे में जाने कैसे. हमने क्या रियलाइज किया कि बिकॉज हमारे पास इतनी सारी ब्रांड की डेटा आने लगी एंड हम उसको सिक्योर तरीके से एग्रीगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन हर ब्रांड जो नई ब्रांड का ना, हमें जाना है हमारा कस्टमर कौन है. तो हमने रियलाइज किया यार ये डेटा कभी अवेलेबल ही नहीं है. पॉपुलेशन डेटा सेंसस 12 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद में पॉपुलेशन कहाँ है, ये बाइंग पावर तो सेम ही नहीं हुआ जो हमने किया. तो हमने बोला यार व्हाट इफ वी स्टार्ट शोइंग आवर डेटा टू पीपल एंड देन सेइंग यार विच टाइप ऑफ बायर इज लिविंग इन विच पिन कोड एंड कौन से पिन कोड. जैसे आपने सवाल पूछा यार कि इंडिया में ना कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा बायर रहते हैं या वेयर डू आई फोकस. हमें हमारा डेटा पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि सबका मिला के करें. हाँ. तो डिमांड कहाँ पे है. तो फिर हमने ही सारा डेटा लिंक्डइन में धीरे धीरे हम पब्लिश करने लगे. ओके. एंड दैट डेटा वाज सो वायरल that people started discovering us from Calcutta because we were having access to this intelligence and they were able to use this to solve newer and newer problems for themselves. Now, so in our reports which we publish and anyone wants to go and then you can download this report for free, is what we have noticed is the most number of buyers, which also you'll see mirror in your data, is like a Delhi, Bombay, Bangalore will have the highest number of buyers. Then there will be like a Pune, Jaipur, Kolkata. This is what will be the next set of but इसमें भी क्या कि number of buyers and location में what we want to measure very strongly is not just, we don't want to see Delhi, Bombay, Bangalore as one city. We want to break Delhi into multiple pin codes. And then we will start making decisions as brands to say यार कि ये 4 पिन कोड दिल्ली में बहुत अच्छा है, फिर नेक्स्ट ना ये कलकत्ता का पिन कोड इज बेटर as opposed to the 5th pin code of Delhi. So do not think of Delhi as a whole. Try to break your problem into more smaller subsets. Right. And then you are able to consciously make newer and newer better decisions for all this. Someone is building a D2C brand. Yeah. ओके. उसको स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में क्या चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा?